नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। ए अल्लाह, हमें हक़ का हक़ होना दिखा दे और उस पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दे, हमें बातिल का बातिल होना दिखा दे और उससे बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दे, आमीन या रब्बुल आलमीन। Today we are going to do Surah Zilzala, which is a Makki surah, and it has 8 verses. Now the central theme of Surah Zilzala is the day of resurrection. Zilzala means, it is one of the names of Qiyamah, and the time of revelation is between 0 to 3 Nabwi, and it talks about the stages of the day of judgment and also the precision, the meticulous way of Allah's accountability is going to be described in this surah. Now, if you allow me, first I'm going to do the Arabic with Urdu translation, and then verse by verse we look at the English translation. Bismillahir Rahmanir Rahim. Iza zulzilatil ardu zilzalah. जब हिला डाली जाएगी ज़मीन, हिला डालना उसका. व अखरजातिल अर्दु अस्कलाहा. अस्कलाह, और निकाल डालेगी ज़मीन बोझा अपना. वकाला. Someone cannot hear me. Can you all confirm if you can hear my voice? It might be an internet problem. Can you all hear me? Can somebody write in chat if everybody can hear me? Yes, okay. Then there's certain areas jahan internet ki wajah se shayad आवाज़ नहीं आ रही है. Everybody else can hear me, so I'll continue. Bismillahirrahmanirrahim. वकाल अल इंसानु मालाह, और कहेगा इंसान क्या है लिए इसके. What is इंसान saying? क्या हो गया इस ज़मीन को? ठीक है. यौमा इज़िन तुहद्दीसु अख़बारहा, उस दिन वो बयान करेगी खबरें अपनी. बिअन्ना रब्बका औहा लहा, बोझा बवजह बेशक रब तेरा इसने वही की लिए इसके. यौमा इज़ यसदुरुन नासु अश्तातल लियुरउ अमालहुम, इस दिन लौटेंगे लोग मुख्तलिफ होते हुए ताकि दिखाए जाए अमाल अपने, ताकि वो दिखाए जाए अमाल अपने. फमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरह, तो जो वो अमल करे वजन जर्रे का खैर वो देखेगा इसको. वमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरह, और जो वो अमल करे वजन जर्रे का शर वो देखेगा इसको. So now if we look at, we're going to start with ayat number 1 and ayat number 2, and we're going to look at the English translation. Now this is the day of Qiyamah, and it is the blowing of the trumpet. The first ayat is when the earth shall quake most violently, and when second ayat is when the earth will remove her loads. कहा क्या जा रहा है कि क़यामत का दिन आ गया. These ayats are talking about the blowing of the trumpet. With the blowing of the first trumpet, Israfil alayhi salam will blow, and the earthquake of Qiyamah is going to start. Now it is the responsibility of Israel alayhi salam, that is what Allah created him for, is to blow into the trumpet. And hadith ka mafhum aata hai कि Israfil alayhi salam is standing, trumpet on his lips, eyes towards the sky, like 2 stars, bright stars. He doesn't blink his eyes, so he doesn't miss the hukam from Allah. And can you imagine that since he has been made, this is his duty and this is how he is standing. It's like Israfil alayhi salam is standing at ready, steady, set, go की position पे to blow for the trumpet of Qiyamah. तो मुझे बताएं मैं और आप कैसे relaxed हो सकते हैं? If Israel alayhi salam is standing ready with the trumpet, how can we not be worried about Qiyamah, because it's coming, and it's coming so soon. And from Adam alayhi salam till Muhammad sallallahu alaihi wasallam, every prophet has informed about the blowing of the trumpet. It is an event that will happen
only once. Now, only once se murad ye कि क़यामत is going to happen only once, but some mufassirin, they say that riwayat ke andar aata hai that the blowing of the trumpet is going to take place 3 times. I want to go into a little bit of detail of this. How is the blowing of the trumpet going to take place? Because what this ayat of Surah Zilzala is talking about is the blowing of the first trumpet. And the first time that the trumpet is blown, the earthquake is going to start. There is going to be extreme fear and terror on earth and within the people, and the whole globe is going to be shaking. And then God knows how long, only Allah knows how long it's going to take between the blowing of the first trumpet and the second trumpet. It might be foreign, it might be 1,000 years apart, it might be 10,000 years apart. Wallahu alam, sirf Allah hi janta hai apne kaamon ko. But then there is a blowing of the second trumpet. And in the blowing of the second trumpet, so first trumpet, what's happening is there's an earthquake, and the earthquake is shaking the whole globe. Abhi dunya ke upar earthquakes aate hai. When we experience an earthquake on planet Earth, it's only coming in one particular place on that land. One particular place for a couple of minutes, और उसके ऊपर कितनी तबाही होती है. Entire buildings, they topple over, bridges, they fall down, entire cities, they get ruined. But that is just a few minutes of earthquake on one place on earth. The blowing of the trumpet, the earthquake, I want you to imagine the entire globe as a ball. And this whole ball is going to experience, the whole globe is going to experience this earthquake. इस ज़मीन पे एक ज़र्रा नहीं होगा जिसके ऊपर ये क़यामत का earthquake नहीं आएगा. And it's continuous and it's all over the globe. Then the blowing of the, until when? जब तक कि ये ज़मीन फट जाएगी. It is going to be toppled over. Then the blowing of the second trumpet. And may Allah save us from this. The blowing of the second trumpet is everyone will die. When Allah says in Surah Rahman, Kullu man alayha fan. Har cheez mar jayegi. Har cheez finished. Khattam. Hadith ke mafhum ke andar aata hai कि Allah Rabbul Izzat is going to roll up the earth like a carpet. He's going to be holding it in his hand on the day of Qayamat, and Allah पूछेगा आज कौन है बादशाह और किसकी है बादशाहत. And I love this moment in time because it tells me about the power of my Allah, and it tells me about the authority of my Allah, and it tells me how amazing my Rabb is, because बादशाह और मालिक सिर्फ अल्लाह है. ये बात हम आज समझ जाएं इंशाल्लाह. And then I want you to imagine also with the blowing of the second trumpet, what is going to happen is there's going to be a pin drop silence like never experienced by the planet Earth, by the universe ever before. There is a pin drop silence. Look around you. Look at the hustle and bustle of life. Look at लोगों को क्या मुसीबत पड़ी हुई है आजकल. Look at कितना over involved in the dunya हम हैं. And then imagine this moment in time, because it's coming, and I want you to imagine the silence. After the blowing of the second trumpet, the dunya is going to be still. It's going to be quiet. And there is no breath. इंसानों का तो छोड़ दे, किसी जानवर का, किसी हवा का चलना, किसी पत्ते का हिलना, एक जर्रे की सांस नहीं होगी on earth on the day of Qiyamah with the blowing of the second trumpet. So this stage, this will again stay till when? Only Allah knows. Maybe one day, maybe 1 year, maybe 10 years, maybe thousands of years. We don't know. Wallahu alam, Allah knows best. And then there is the blowing of the third trumpet. And with the blowing of the third trumpet, everyone is going to come back to life. This is resurrection on the day of Qiyamah. जब तीसरी दफा सूर फूका जाएगा तो हम अपनी कब्रों से छलांगे मार मार के भाग रहे होंगे किधर? अल्लाह की तरफ. People are going to be jumping out of their graves. मखलूक. And I want you to imagine, ज़मीन के अंदर जो grave है, एक कब्र में एक इंसान तो नहीं दफन हुआ हुआ ना. Think about it. इस ज़मीन ने हजारों साल में कितनी लेयर्स, कितने कंपार्टमेंट्स होंगे. उस एक कब्र को जब वो जमीन खुलेगी तो उसके अंदर से हजारों लोग एक फौज की तरह, लाइक अ मिलिट्री लाइन बनाकर, और अल्लाह की तरफ भागे चले जा रहे होंगे. And then in this Arabic word, I want you to understand the gravity. Yes, the words of Surah Zilzala, they're going to shake us a little bit. They're a little scary, लेकिन कभी कभी हमारे लिए shake होना बहुत जरूरी है. We have to understand what is this day of Qiyamah that's coming.
because in the Arabic zalzal, ये रिपीट हो रहा है ना, 2 दफा कहा जल जल. अच्छा, अब जल जल जो कहा तो एक explanation of the word zalzal is that it's shaking. It's shaking continuously. कब तक? Shaking zal 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 और फट गई जमीन. ठीक है? This is one meaning of this word. But the other meaning of the word is even more scarier. If you have ever used a blender, आपने खाना बनाने के लिए कभी blender use किया? This is the meaning of this zalzal. It means shake, stop, shake, stop, shake, stop. कैसे? जैसे ब्लेंडर पाउडर बना देता है ना किसी चीज का, ऊपर से नीचे चीजें आती हैं, फिर वो ग्राइंड होती हैं, फिर ऊपर से नीचे आती हैं, फिर वो ग्राइंड होती हैं. दिस इज द जलजल ऑफ द डे ऑफ कयामत. लाइक अ ब्लेंडर, जब तक अल्लाह पाक इस जमीन को दक्कन दक्कन चूरा चूरा करके बिछा देगा, जर्रा जर्रा बिछ जाएगी इस जमीन के ऊपर. एंड ऑल्सो इट मेक्स यू थिंक अबाउट हाउ सिली this dunya and my bridges and my large buildings and my large properties and my large everything that I own, everything that I'm so attracted to in the dunya. कभी इन चीज़ों को देख के ये सोचा है कि एक दिन अल्लाह इसका पाउडर बना देगा तो आपको उन चीज़ों की वैल्यू ही नहीं रहती है. This is what the Quran, it changes the concept, the perception of how we look at the dunya, and it's so powerful, this message. Because Allah is saying that day is coming where everything that you think is permanent is going to be made into zarra zarra little powders. And zilzilah ha. I said in the first ayat, iza zulzilatil ardu zilzilaha. अब ये जो हा की ज़मीर है, ये कहाँ जा रही है? This shows that ये जो earth है, there is not going to be an inch of space on this planet Earth that is not going to experience the earthquake of Qayamat. Zilzila ha, यानी ये जितना ग्लोब है, ये जितनी जमीन है, ये सारी की सारी हिलेगी और सारी की सारी फट जाएगी और छुपने की कोई जगह नहीं होगी. And since it was created, it was created, इस ग्लोब planet Earth का purpose यही था. This was the destiny of Earth. When Allah created it, He created it so that one day it will shake with all of its might till it is flattened out. And then it's going to take out everything from its stomach. अपने पेट से और निकाल डालेगी जमीन बोझा अपना. जमीन के पेट से वो सब कुछ निकाल के बाहर कर देगी. अब जमीन के पेट के अंदर क्या है? Everything in her stomach. Again, let's go into a little bit of excavation under planet Earth. क्या क्या निकलेगा कयामत के दिन? अल्लाह पाक is saying सखल निकलेगा. सखल कहते हैं travelers के, पुराने ज़माने में when travelers used to travel, they used to have these trunks. और उनके अंदर उसका precious सामान होता था travelers का. अब precious सामान, I want you to imagine a treasure box. Treasure box के अंदर क्या होता है? और ये किसका? एक तो ज़मीन के अंदर से उसका ह्यूमंस भी निकलेंगे, जाहिर सी बात है जब रेजरेक्शन होगी ह्यूमंस एंड जिन आर कमिंग आउट. मगर ये जो सकल है ना, सकल्ला के अंदर जो हैवीनेस ऑफ द लोड है, उसके अंदर क्या भरा हुआ है जमीन के अंदर? उसके अंदर डायमंड्स हैं, उसके अंदर ट्रेजर्स है, then there's oil, there's gold, there's precious stones. I want you to imagine like 20 carat emeralds, 20 carat diamonds. ये सब जमीन निकाल के बाहर फेंक देगी and there's going to be mountains of these goods. Mountains. Have you ever seen a dump site? आपने टीवी के ऊपर देखा होगा जब वो सारा garbage लेके जाते हैं outside the city, they have dump sites. You know what they do is they pile up all of the garbage into these huge mountain looking things. That's a dump site, okay? Exactly the same word picture is being made over here by Allah. But what is He saying? All of your gold, all of your precious stones, everything is going to be dumped like garbage on the day of Qayamat. Everything that you loved so much on the dunya, जिसके पीछे भाग भाग के नहीं थकते थे, दुआएं भी मांगते थे अल्लाह से, तो सिर्फ इस माल के लिए मांगते थे, सिर्फ इस दुनिया के लिए मांगते थे. ये सारी की सारी चीजें जो है ये पड़ी हुई होंगी कचरे की तरह, कौड़ियों के दाम, कूड़ा बन के नजर आ रही होगी लोगों को. एंड पीपल आर नॉट गोइंग टू गो टू लूट इट. दे आर नॉट गोइंग टू गो कि अच्छा हम इसमें से कुछ जमा कर लेते हैं. उस दिन किसी को फिक्र नहीं होगी इस माल की, उस दिन सिर्फ अपने अमाल की फिक्र होगी. एंड man will be astonished to see it lying there like dumps. And then Allah is saying, you know, in this Arabic word where Allah says al-insan,
आयत नंबर 3 के अंदर अल इंसान वकाल अल इंसानु मा लहा, अब इंसान क्या कह रहा है? एंड मैन विल आस्क व्हाट इज द मैटर विद हर, जमीन को हो क्या गया है? व्हाट इज द मैटर विद हर? मैन विल बी astonished to see it lying there in dumps. And al insan के अंदर this is a call to me and you individually. This is not al जब लगा दिया ना Arabic के अंदर, now it's a proper noun. It's a proper noun, means Allah is directly calling to you and me and every single human being. Al insan, you and you and you and you and me, each and every individually. Allah is calling individually. Every insan is going to say what has happened to the earth. आज जमीन को क्या हो गया है? All people will be standing there. You will be in a crowd, millions of people, but al insan, every single individual is going to feel alone. Alone. He's going to be standing there alone. He's going to think कि कयामत का दिन सिर्फ पूरा के पूरे मैदान में मैं एक अकेली खड़ी हूँ और मेरे पास कोई भी नहीं है. अच्छा, दुनिया के ऊपर भी we understand that sometimes when you have a very great difficulty fall upon you, कभी ऐसा होता है कि बहुत मुश्किल होती है, दिल खराब होता है, बहुत परेशानी होती है. It doesn't matter if you're sitting in a crowd, it doesn't matter if you're standing in a crowd. अपनी अंदर जो तकलीफ होती है, जो परेशानी होती है, जो गम होता है, वो इतना बड़ा होता है कि the crowds don't matter. You feel like you're standing alone, right? This is what Allah is describing about the day of Qiyamah. And what Allah is saying on the day of Qiyamah is कि झुंड के झुंड खड़े होंगे. Armies of people are going to be standing. लेकिन कयामत इतना बड़ा गम है जो दुनिया के ऊपर कभी भी नहीं पड़ा. उस दिन हर इंसान को लगेगा कि मैं अकेला खड़ा हूं. आज इतना बड़ी मुश्किल है. कयामत का दिन is not an easy day. And the earthquake. Think about earthquake and tsunamis and natural disasters. What happens on the dunya? जब अभी earthquake आता है, people go to help each other. People collect charity. People go to rebuild those cities. They reach out to help each other. But on the day of Qiyamah, Allah is saying, Al-insan, no one will help anyone. No one. Sagi माँ नहीं पूछेगी अपनी औलाद को. Each person is going to be standing there in a daze. उसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है. Like there's nobody there. He's all alone. He's in a daze. And ayat number 4, on that day, she will narrate her stories. She will narrate her stories. Now, Yawmanuzin. Yawma izin. Yawma izin is then, इसके अंदर warning है. खबरदार किया जा रहा है इसकी अरबिक के अंदर. That day, the day that's coming. Beware. Be ready when it comes. Don't come unprepared. It's a very difficult day. यौमा इज़िन के अंदर अल्लाह पाक बता रहे हैं ये दिन हल्का नहीं है, मेरी बंदी तैयारी कर आना. और कब आएगी कयामत, कब आएगी कयामत, ये कुफारे मक्का पूछ रहे थे बार बार. They used to bother the Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. अच्छा तो ले आओ कयामत, अच्छा तो कल ले आओ कयामत, हमने तो नहीं मानना अल्लाह के ऊपर. आज भी लोगों का कयामत के बारे में attitude I've told you is it's very light. It's very like Qayamat's just going to be a big picnic. Everybody's going to get together and then सब एक दूसरे से हाथों में तालियां बजा रहे होंगे, हाई फाइव्स कर रहे होंगे. No, कयामत ऐसी आएगी जैसे कुरान में अल्लाह पाक ने बता दिया. और ये हल्का दिन नहीं है. So यौमा इज़िन के अंदर तनकीद है, उसके अंदर वार्निंग है. एंड देन ये बता देगी क्या, यौमा इज़िन तो हद्दिसु अखबारहा. तो हद्दिसु ये हदीस, हदफ, ये बात बता रही है. कौन बात बता रही है भाई? द लेटेस्ट. हद्दिसु मीन्स द लेटेस्ट न्यूज, जिसको हम कहते हैं ना, अच्छा आओ मैं तुम्हें मसालेदार खबर सुनाती हूँ, लेटेस्ट न्यूज बताती हूँ. ये हद्दिस. अब कौन बता रही है? कयामत के दिन जमीन बता रही है. जमीन. द अर्थ will tell her tales. This is what this ayat is saying. So I want you to understand, this ayat is saying the earth is a living creature. ये जमीन है, ये कैसे बोलेगी? कयामत के दिन ऐसे बोलेगी कि ये जिंदा एक मखलूक है, ये आज भी जिंदा है. And it is like a recording spy of Allah. जैसे स्पाई वो कैमरास लगे हुए होते हैं या स्पाइस दूसरे मुल्कों में जाके खबरें जमा कर रहे होते हैं. अब मुझे ये बताएं, इस जमीन से बच के कहां जाएंगे? लोगों से बच के तो गुनाह कर लेंगे. ये जमीन जो अल्लाह ने पांव के नीचे रखी है,
एक एक चीज रिकॉर्ड कर रही है और एक एक चीज बताएगी कयामत के दिन में. अल्लाह सेव अस फ्रॉम दिस. इट्स डिस्गाइज्ड राइट नाउ, इट्स ऑब्जर्विंग राइट नाउ, इट्स क्वाइट राइट नाउ. अभी तो जमीन नहीं बोलती है, लेकिन जब अल्लाह इसको हुक्म देगा, when Allah will give it hukum. This is ayat number 5. Bi anna rabbika awha laha. बावजह बेशक रब तेरा इसने वही की लिए इसके. अच्छा, वही की लिए इसके कैसे अल्लाह ने हुक्म दिया? इस वही के अंदर जो मीनिंग आती है, ऐसा इशारा किया कि द थर्ड पर्सन नेवर सॉ इट. मीन सारी खलकत खड़ी होगी, लेकिन अल्लाह जमीन को ऐसा इशारा करेगा कि बाकी कोई इंसान उस इशारे को नहीं देखेगा, जमीन देखेगा उस इशारे को और जमीन बोलना शुरू कर देगी. एंड देन शी विल टेल ऑल, शी विल टेल ऑल. हजरत अली रजी अल्लाह अन्हा का मुझे कॉल याद आ रहा है कि उन्होंने फरमाया, गुनाह करना है तो किसी ऐसी जगह जाके कर जहां अल्लाह ना हो. तो किधर जाएंगे, किधर जाएंगे? जमीन में से निकल के अगर स्पेस में भी चले गए तो किधर जाएंगे? कौन सी जगह मिलेगी ऐसे जहां अल्लाह ना हो या अल्लाह की ये रिकॉर्डिंग ना हो रही हो जो कयामत के दिन हमें अकाउंटेबिलिटी देनी है. देन शी विल टेल ऑल. ऐसी ऐसी बातें बताएगी, ऐसी ऐसी बातें बताएगी जो इंसान भूल चुका होगा, इंसान को याद ही नहीं रहेगा. व्हेन वी हियर इट, it will sound like we are hearing it for the first time, and then we will remember, oh my God, yes, I did do this. And who is she telling? अब ये बातें बताएगी जमीन, हमें नहीं पता. या तो मुफस्सिरीन से she is going to be telling Allah, but other than Allah. कयामत का मैदान कैसा खुला मैदान है ना, हशर का मैदान. इंसान भी खड़े हैं, जिन भी खड़े हैं, फरिश्ते भी खड़े हैं, सब खड़े हैं लाइन से. हो सकता है that she will be announcing it on a loud speaker में. Allah save us from this. All of the people, all of the angels, all of the jinn can hear it along with Allah. And ये जो इशारा किया मैंने आपको बताया, अल्लाह ने जब इसको कमांड दिया, अल्लाह ने इसको इजाजत दी, अल्लाह ने इसको परमिशन दिया, तो अब क्या हुआ? This comes from Allah. Now I want you to understand something. ये जमीन को आज के बाद गुनाह करना आसान नहीं हो सकता, because now we know that we have Allah's spy under our feet. Under our feet. दुनिया में कहीं पे भी चले जाएंगे ना, even if you go to the top of the Eiffel Tower, or you go to the top of the Burj Khalifa, or you go to any place on earth, वहाँ की ज़मीन रिकॉर्डिंग कर रही है, लाइव ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग. तो गुनाह करना आसान काम नहीं है, आसान काम नहीं है. अल्लाह हिसाब लेगा. And the earth, it's like it wanted to talk. It wanted to talk, and now Allah is giving it permission. And then Allah ने जो इजाजत दी, जो हुक्म दे दिया अल्लाह ने, so ज़मीन is a witness, and the earth, it will not lie. It doesn't lie. इसको झूठ बोलना नहीं आता. ये किसी के बारे में झूठे इल्जाम नहीं लगाएगी कयामत के दिन, ये सच बोलेगी. When it tells its tales, it will get witness on everyone. Everyone, on me and on you, on everyone who has ever walked the earth. मुझे बताएं, जमीन की टेल्स कैसी होंगी ना कयामत के दिन. कैसा कैसा जुल्म किया है इंसानों ने, लोगों का माल खाया इसी जमीन के ऊपर, कत्ल किया इसी जमीन के ऊपर, raped people on this जमीन, molested children on this जमीन. कैसा कैसा जुल्म, बच्चों ने अपने माँ बाप को घरों से धक्के मार के निकाला इसी जमीन के ऊपर. तो अल्लाह पाक कह रहे हैं, ये जमीन एक एक के ऊपर गवाही देगी कयामत के दिन, और एक एक की ये गुनाह एक एक चीज बताएगी. And then in ayat number 6, on that day people will return in different groups to witness their deeds. अब ये जो लौटाए जा रहे हैं, यौमा इज़िन यसदुरुन नासु अश्तातन लियुरौ अमालहुम. अच्छा, now when they are being returned in different groups, what does this mean? After the witness of the earth, after ज़मीन ने बोल दिया, ज़मीन ने सब बता दिया, it's told the tales, सब के चिट्टे खोल के रख दिए ज़मीन ने. Then even what is going to happen is, it's going to show their amal. Now ashtatan means groups. Now people are divided into groups. Some mufassirin say that people of the same religion are going to be divided into groups.
So it might be a grouping according to all the Muslims in one group, all the Jews in one group, all the Hindus in one group. Maybe this is how the grouping is going to take place on the day of Qiyamah. But another opinion is, Allah is saying, जो अमाल थे उससे grouping हो जाएगी क़यामत के दिन. The murderers, the killers are going to be in one group. जो जिना करते थे they will be in one group. जो शराब पीते थे they will be in one group. जो तहज्जुद पढ़ते थे, 5 वक्त नमाजी थे, they will be in one group. जो अंबिया थे, शहदा थे, they will be in another group. अल्लाह हमारा खात्मा बिल ईमान पे करे. अल्लाह हमें क़यामत के दिन अच्छे ग्रुप्स में से उठाए. अल्लाह हमें बचाए क़यामत के दिन. दुनिया पे देखें, अगर दुनिया पे हमने कैसी जिंदगी गुजारी, दैट इज गोइंग टू डिटरमिन व्हाट सॉर्ट ऑफ ग्रुप वी आर गोइंग टू राइज ऑन द डे ऑफ क़यामत. अगर दुनिया पे सारी उम्र हम हिंदुओं की रस्में निभाते मर गए, तो क़यामत के दिन जाके हम मुसलमानों में और सालेहीन में और शौदा में तो नहीं जाके खड़े हो सकते. रॉन्ग ग्रुपिंग. तो अपनी जिंदगी का जायजा हमें खुद लेना है कि यहाँ हमारे अमाल क्या हैं, जो हम किस तरह के ग्रुप में ऐड हो सकते हैं क़यामत के दिन. उस दिन ख्याल आएगा कि कोई मजबूरी नहीं थी दुनिया के ऊपर. कौन सी मजबूरी? जब इस क़यामत को, शेकिंग डे ऑफ, हॉरिफिक डे ऑफ क़यामत, रियली स्केरी डे ऑफ क़यामत, जब इसको अपनी आंखों से देखेंगे तो ख्याल आएगा कि देयर इज नथिंग दैट कैन फोर्स अस टू डू समथिंग दैट वी डोंट वांट टू डू. किसी की मोहब्बत मजबूरी नहीं है, किसी के चेहरे देखने की ज़रूरत नहीं है, किसी का फलाना नाराज़ हो जाएगा अगर मैं माइयों नहीं करूँगी, फलाना नाराज़ हो जाएगा अगर मैं जहेज़ नहीं दूंगी, अगर मैं मेहंदी नहीं करूँगी. मेरे ऊपर कोई मजबूरी नहीं है, इसलिए कि मैंने इस क़यामत के दिन अपने अल्लाह के आगे अकेले खड़े होना है. सो आई हैव टू कीप अ चेक ऑन माई ओन अकाउंटेबिलिटी एंड हाउ आई एम गोइंग टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अल्लाह. हाउ एम आई गोइंग टू फेस अल्लाह. And ashtatan also means individually they're scattered. अब क्या हो रहा है? अमाल दिखाए जाएंगे. अमाल कैसे दिखाए जाएंगे? Surveillance video, audio video recording of every scene of my life is with Allah. अल्लाह हमारा हिसाब पर्दे में ले. This is the scariest point of the day of Qiyamah. I want you to envision that जैसे रिकॉर्डर की लीड होती है ना, लीड लाके यहाँ ब्रेन के अंदर लगा दी. ब्रेन, we know that science tells us that we use what 1% something percent of our brain, 1-2% of our brain maximum. बाकी ब्रेन खाली क्या कर रहा है? बाकी ब्रेन खाली is the USB. और इस हो सकता है वल्लाहु आलम, इस USB के अंदर ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ माई एंटायर लाइफ है. एंड माई एंटायर लाइफ, जो बड़ी सिनेमैटिक स्क्रीन्स नहीं लगी होती, बड़ी सिनेमा स्क्रीन, वो क़यामत के दिन लगी हुई होगी. आपने हीरोइन मूवी देखी है? नहीं, हम तो इतने इस्लामिक अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो मूवीज देखते ही नहीं है, मगर सुना होगा आपने. वो हीरोइन मूवी जो थी उसके अंदर हीरोइन की पूरी जिंदगी दिखाते हैं बड़े स्क्रीन के ऊपर. तो क़यामत के दिन, मे अल्लाह सेव अस फ्रॉम दिस, एक एक इंसान की वीडियो, सिवाय उसके जिसका हिसाब अल्लाह पर्दा में लेगा, उसकी वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग एक मूवी की तरह चलाई जाएगी बड़े पर्दे के ऊपर, ऑन अ लार्ज सिनेमा स्क्रीन. मे अल्लाह सेव अस फ्रॉम दिस, मे अल्लाह सेव अस फ्रॉम दिस. इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दुआ सिखाई है, अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाब यसीरा. अल्लाह तू हमसे आसान हिसाब ले. अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाब यसीरा, बिकॉज हिसाब इटसेल्फ, accountability itself, it's a very difficult day, a very difficult task. And you can calculate on the day of Qayamat, you can calculate what sort of life did I lead on the dunya. अपना हिसाब खुद पता होगा. कुरान के अंदर अल्लाह पाक कहते हैं, कुरान में आता है, पढ़ अपना अमाल नामा, आज तू अपना हिसाब लेने के लिए खुद काफी है. अब ये रिकॉर्डिंग आ गई सामने और खुद पता होगा कि दुनिया के ऊपर अल्लाह के लिए काम किया था, शैतान की बात मानी थी. खुद पता होगा. आज भी हमें पता होता है, हमें ज़मीर बताती है, हमें अंदर पता है कितना लगे हम दुनिया पे अल्लाह के लिए, कितनी को वफादारी कर दी हमने अल्लाह के साथ. हम अपना हिसाब आज भी खूब ले सकते हैं. तो इस दिन खड़े होने से पहले it's better to have a little bit of accountability within ourselves every day. We must be aware of this. And after this video is played, फिर अल्लाह मालिक है. अल्लाह मालिक है. मालिक means ownership.
वो जिसको चाहेगा बख्शेगा, जिसको चाहेगा he will take him to account. Allahumma hasibni hisaba yasira, Allah take an easy account from us. This means Allah बहुत हल्का सा हिसाब लेगा, बस पूछेगा ही नहीं क्या हुआ, बस ठीक है अमालनामा देखा, okay you were doing all right, चलो जाओ तुम जन्नत. ये है अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबा यसीरा. और एक हदीस के मफहूम के अंदर आता है कि एक आदमी खड़ा होगा. एक तो आखिरत में वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मी एंड यू वी वांट अल्लाह टू टेक आवर हिसाब in parda. Why? We don't want people to see what we've done in our lives. Really अल्लाह हमारे पर्दे दुनिया के ऊपर भी रखे, अल्लाह हमारे कयामत के दिन भी पर्दे में हिसाब रहे. Imagine how embarrassing if our entire life is displayed for all of humanity and jinn and angels to see. हमने अपनी जिंदगी का क्या तमाशा किया हमने. अल्लाह हमें बचाए इस चीज से. एक हदीस के मफहूम के अंदर आता है कि there will be a man. So अगर आखिरत में पर्दे वाला हिसाब चाहिए, बहुत आसान है. दुनिया में किसी का पर्दा रखना, अल्लाह की मखलूक का पर्दा रखना, अल्लाह कयामत के दिन हिसाब पर्दे में लेगा. What does this mean? It means when that hot little bit of gossip comes to you, that oh so and so is having an affair, oh so and so had liposuction, oh so and so's husband, oh this, oh that. जब पेट के अंदर मड़ोड़ होना शुरू हो जाते हैं ना, इतनी गर्म खबर, सनसनीखेज खबर आ गई, उस वक्त अपने आप को रोक ले, अल्लाह की मखलूक का पर्दा रखें, मत लोगों की इज्जतें उछालें, मत लोगों के बारे में जबान चलाएं. Don't talk. If you are able to control yourself and not gossip about Allah's makhluk, and if you can put this parda on Allah's makhluk on the dunya, inshallah Allah हमारा हिसाब क़यामत के दिन पर्दे में लेगा. अब पर्दे का हिसाब समझे. The mafhum of the hadith tells us that पर्दे का हिसाब means that there is a curtain and only me alone and my Allah. I want you to imagine this. अपना नाम लेकर आए, अपना दिल के अंदर नाम लेकर आए, मैं अकेली खड़ी हूं उस पर्दे के अंदर, only me and Allah. So it's like a private interview, जैसे जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं. अब सारी खलकत मखलूक, the day of Qiyamah, all of the lines, they're standing outside that curtain. Only you and Allah are within that curtain. और फिर अल्लाह अपनी नेमतें याद दिलाएगा. The hadith tells us, अल्लाह नेमतें कैसे याद दिलाएगा? मैंने तुम्हें मेरी बंदी दुनिया के ऊपर इज्जत दी, हम कहेंगे जी अल्लाह. मैंने तुम्हें नेमत दी, जी अल्लाह. मैंने तुम्हें औलाद दी, जी अल्लाह. मैंने तुम्हें बड़ा बंगला दिया, जी अल्लाह. मैंने तुम्हें दौलतें दी, जी अल्लाह. मैंने तुम्हें सेहत दी, जी अल्लाह. मैंने तुम्हें इंटेलिजेंस दी, जी अल्लाह. मैंने तुम्हें बहुत प्यारा चेहरा दिया, जी अल्लाह. सब कुछ अल्लाह गिनवाएगा. उसके बाद अल्लाह पूछेगा, अच्छा तुमने ये गुनाह किया था? हम कहेंगे जी अल्लाह. इस मिनट में रुक जाएं और एक मिनट ये समझ लें कि अल्लाह के आगे जब खड़े होंगे, nobody can lie to Allah. Nobody, नाउज़ुबिल्लाह, can make up a story. Sometimes हमें लगता है कि जब कयामत के दिन जाएंगे तो हम कहानियां सुनाएंगे अल्लाह को. अल्लाह मेरी तो ये मजबूरी थी, मैं तो बच्चों के ट्यूशन के पिक एंड ड्रॉप में लगी थी तो मैं कुरान नहीं पढ़ सकती थी. अल्लाह मेरी फलानी मजबूरी. अल्लाह मेरा शौहर इतना हैंडसम था. अल्लाह मेरा शौहर इतना अमीर था. अल्लाह I really couldn't become all Islamic. I was kind of stuck in my social status. ये सब नहीं चलेगा कयामत के दिन. It's not going to fit. On the day of Qiyamah, when my Rabb is standing in front of me, I will speak nothing but the truth. And when Allah asks, तुमने ये गुनाह किया था? हम कहेंगे जी अल्लाह. तुमने ये गुनाह किया था? हम कहेंगे जी अल्लाह. ये हदीस का मफहूम बताता है कि वो आदमी जब अपने गुनाहों को एक्सेप्ट कर रहा होगा तो वो दिल के अंदर ये सोचेगा कि अब तो मैं तबाह हो गया. अल्लाह ने मेरे 100, 200, 500 गुनाह गिनवा दिए, बिकॉज अमाल नामा खुला होगा. और वो आदमी सोचेगा कि मैं तबाह हो गया. उसके बाद अल्लाह पाक मुस्कुराएंगे. अल्लाह इज गोइंग टू स्माइल एट दिस मैन. अल्लाह इज गोइंग टू से, जाओ मैंने तुम्हें माफ किया, मैंने तुम्हारे सारे गुनाह माफ कर दिए, जाओ तुम जन्नत चले जाओ. May Allah make us from those who get to hear these words from Allah कि जाओ उदखुलूनी जन्नतिका, कि जाओ तुम दाखिल हो जाओ मेरी जन्नत के अंदर. Because those are the words that we need to work a life towards. This needs to be the bigger mission in our life. Because really when we read these ayats of the Quran, they change our perspective and our values and weight scale of what is so important on the dunya. This day of Qiyamah is the most important thing. It's the most important. And then ayat number 7 and 8. And these are the most beautiful ayats.
7 and 8, فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. अब क्या है? What is he saying? What is this ayat saying? Whoever does an iota's weight of good will see it, and whoever does an iota's weight of evil will see it. Now, what is this iota? Miskala. Agar aaj, I hope that I am able to explain to you what miskala means. Agar hum ye samajh gaye, hamara life ka mission change ho jayega. Just this word miskala. Every small iota, every grain. मिसकाला कहते हैं छोटी लाल चूंटी होती है ना, बिल्कुल छोटी. अरबिक में मिसकाला कहते हैं छोटी, द लिटिल रेड एंट, टाइनी लिटिल रेड एंट. अब होता क्या है कि दुनिया के ऊपर बड़े गुनाह तो सबको याद है. व्हेन वी गो फॉर हज, व्हेन वी गो फॉर उम्रा, व्हेन वी आर प्रेइंग इन रमजान, जब हम तहज्जुदें पढ़ रहे, हम करते क्या है? वी बेग अल्लाह फॉर फॉरगिवनेस फॉर आवर बिग गुनाहs. बिग गुनाहs, अल्लाह तौबा करती हूँ, अल्लाह बख्शते, और वो बख्शने वाला है. वो नहीं बख्शेगा तो कौन बख्शेगा हमें? उसकी जात है, वो है बख्शने वाला. बट व्हाट डू इज वी निग्लेक्ट द स्मॉल गुनाहs. व्हाट आर द स्मॉल गुनाहs? उनकी तो कभी तौबा ही नहीं मांगी अल्लाह से हमने. व्हाट आर द स्मॉल गुनाहs? यहाँ आके मरवा देंगे हमें छोटे गुनाह. क्यों? क्या है? अब लेट्स लुक एट मिसकाला के अंदर क्या आ रहा है. रिमेंबर जब अम्मी डांटती थी, अब जबान से तो कुछ नहीं कह सकते थे ना, वो तो हमें पता है अल्हम्दुलिल्लाह. एटलीस्ट टिल आवर जनरेशन हमारी जबानें आज दिन तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बड़ों के आगे कभी भी नहीं खुलती. ठीक है, जबान नहीं चलती. लेकिन होता क्या है कि जब अम्मी डांट रही होती है ना और अम्मी लेक्चर दे रही होती है, वी रोल आवर आईज, और हमें लगता है किसी ने नहीं देखा. अम्मी ने तो नहीं देखा, अम्मी तो लगी हुई है डांटने के लिए, खूब डांट पिट रही. हमने यूं करके आंख घुमाई, एंड व्हाट इज दैट रोलिंग ऑफ द आईज? दैट रोलिंग ऑफ द आईज इज सेइंग, ओ माय गॉड, व्हाट अ फूल, व्हाट इज शी ऑन अबाउट? दैट्स द रोलिंग ऑफ द आई. किसी ने नहीं देखा, अल्लाह ने देख लिया, अल्लाह ने रिकॉर्ड कर लिया. गुनाह है, बिल्कुल गुनाह है, बिल्कुल गुनाह है. द cheeky side smirks that we share with our best friends when we're making fun of someone. किसी ने बहुत फ्लेयरी और गैंजा का जोड़ा पहना है, हम टी पार्टी पे बैठे, कुछ नहीं कहा. हमने कहा देखे हम गीबत तो करते ही नहीं, हमने छोड़ दिया. जब से कुरान क्लास शुरू की है कसम से गीबत करना शुरू कर दी. किया क्या? बराबर में बेस्ट फ्रेंड बैठी है, कोनी मारी और ये साइड स्मर्क. इसको देखो, व्हाट डिड दैट स्मर्क से? दैट स्मर्क सेड, इसको देखो, खुद को बड़ी कोई मिस वर्ल्ड समझ रही है. She's looking like a bloody fool. That's what we're thinking. We're looking down at somebody. We're thinking low of somebody. It is एक हाथ का इशारा, एक आंख का इशारा, एक ऐसे नाक चढ़ा देना. Oh my God, they're so lowly. ये जर्रा जर्रा, one word to understand miskala. समझ रहे इस बात को? जब धूप आती है ना from the window, when the sun rays are coming in from the window, sometimes what happens is you can see dust particles floating in the air. You know what I'm talking about? Those dust particles floating in the air, that is miskala. That is miskala. उसको अगर वेट स्केल के ऊपर रखा जाए उसका कोई वजन नहीं है. ये है मिसकाला, इस गुनाह का वजन. ये जो मिसकाला है ये भी तुम्हें कयामत के दिन नजर आएगा. सो द अकाउंटेबिलिटी ऑन द डे ऑफ कयामत इज माइक्रोस्कोपिक. माइक्रो लेवल पे भी हिसाब होगा, मैक्रो लेवल पे तो होगा ही होगा. बड़े गुनाह तो है ही बहुत इकट्ठे तिजोरी के अंदर. माइक्रो लेवल के ऊपर लाइक डस्ट पार्टिकल्स, things that we don't even remember. When we have noor of wahi, in life we will remember even the small gunas and we will be careful to check for them. ब्रेक लग जाए, अल्लाह करे आज के बाद हमारी जबानों को ब्रेक लग जाए. अल्लाह हम अपनी जन्नत अपनी जबानों की वजह से ना गवा दे. अल्लाह हम जहन्नम में अपनी जबानों की वजह से ना जाके गिर जाए. Because this is the greatest evil, especially for the women species of this race. स्पेशली आजकल तो अल्लाह माफी मर्दों को भी बहुत बीमारी है गॉसिप करने की, गिबत करने की, बट स्पेशली द वुमेन. देन व्हाट हैपेंस इज अगेन वी स्लिप. फिर बैठे पार्टी में, फिर भूल गए हम दर्स क्लास, फिर लगे चटखोरे लेने. ये जबान के चटखोरे तो हमें कयामत का दिन ये सूरह जिलजिला इसलिए दिखा रही है that it should open in front of our eyes like a flash. Then we slip, then again we do astaghfar, then again we do tawbah, because we need it constantly. And then when we look down at someone, अल्लाह को सब पता है जजा ईमान वालों को मिलेगी. This is very important. ये बात समझ लें.
ये जो वीडियो दिखाई जा रही है ऑन द डे ऑफ कयामत, द अमाल, व्हाट यू डिड, व्हाट सॉर्ट ऑफ लाइफ यू लिव्ड, ये सबको दिखाई जाएगी. Every single individual ever born on earth. Hitler is going to be shown his movie. Pharaoh is going to be shown his movie. Musa alayhi salam is going to be shown his movie. Alam is going to be shown his movie. The people who did good deeds will be shown their movies. The people who did bad deeds are going to be shown their movies. But ईमान होगा तो अजर मिलेगा, वरना सब जीरो, पूरी जिंदगी जीरो. If there is no ईमान, आज हम कदर करें ईमान क्या चीज है. सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह. If there is no ईमान, even the greatest good deed is going to have zero value on the day of Qiyamah. It will be turned into dust. अल्लाह कहते हैं मैं इसको खप्त कर दूंगा. बड़े से बड़ा गुड डीड, बड़ी किसी ने कोई चैरिटी की होगी, नथिंग, इट्स जीरो ऑन द डे ऑफ कयामत. एंड अमाल विल बी वेड आफ्टर दिस वीडियो इज शोन. बट व्हेन दीज आयात केम डाउन, अब ये भी समझें, व्हेन दीज आयात केम डाउन, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हा वाज ईटिंग, वो खाना खा रहे थे और वो रुक गए. वो खाना खाते हुए रुक गए. एंड ही लुक्ड एट द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड ही आस्क्ड, या रसूल अल्लाह, will I be given badla for an iota of bad? ये मिशकाला, अगर मुझसे कोई मिशकाला की गलती हो गई है, जो कोई छोटी दर्जे का गुनाह हो गया है, या क्या अल्लाह मुझे उसका हिसाब देना होगा? बिकॉज वो डरते थे. डरता कौन नहीं है? मैं और आप. ढीठ हमारे दिल, ढीठ हमारी आंखें, असर ही नहीं होता हमें आयतों का. लेकिन सहाबा वो डरते थे, उनको फिक्र होती थी. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, अबू बकर, दुनिया पर जो नागवार हालात तुम पर आते हैं वो तुम्हारे छोटे शर का कफारा बन जाते हैं. अब दुनिया के ऊपर नागवार हालात चले, किसी को बुखार हो गया, किसी को नजला हो गया, यू लॉस्ट योर पेयर ऑफ कीज, कोई बच्चा गिर गया, उसको चोट लग गई. एनी लिटिल मुसलमान को जो परेशानी होती है वो उसके छोटे गुनाहों का कुफारा जा रहा होता है. एवरी डिफिकल्टी, इवन अ स्मॉल हेडेक, even if you've lost something, the zarra, and then Allah is also saying what, the zarra of neki. अब मिशकाला खाली गुनाहों के लिए थोड़ी है, मिशकाला नेकियों के लिए है. कैसे? अल्लाह पाक कह रहे जर्रे की भी नेकी होगी, वो जखीरा हो जाएगी, वो जमा हो गई, जमा होके बढ़ जाएगी. You looked at someone with rahim, smile at your spouses, smile at your husbands, you saved someone from doing something bad. मिशकाला, छोटी नेकी जिसको हम नेकी समझते ही नहीं है. किसी को पानी का ग्लास ला के दे दिया आपने. You put a dish in front of your kids or your husband or your home members. You put a morsel of food in the mouth of your children. मिशकाला, कयामत के दिन मिलेगा अमाल नामे में इंशाल्लाह, इंशाल्लाह. You stood up and gave somebody an elderly your seat. The things we don't even think about. इनका भी अजर मिलेगा इंशाल्लाह with ईमान, with ईमान. Without ईमान, अगर ईमान नहीं है, कयामत के दिन अल्लाह के पास जीरो, जीरो. इट डजंट मैटर आपने दुनिया के ऊपर हॉस्पिटल बना दिए. It doesn't matter if you cured smallpox and you took out the medicine for a disease. No ajr on the day of Qiyamah. क्योंकि जब अल्लाह को ही नहीं मानते तो कयामत के दिन अल्लाह से जाके क्या अजर मांगेंगे? आप समझे बात को. अमाल, good deeds even kafir do, but a good deed is not amal. It is not accepted on the day of Qiyamah without ईमान. तो ईमान की कदर वो हमें कयामत के दिन जाके आएगी. हमें पता चलेगा कि अल्लाह ने जो हमें ये कलमा पढ़ाया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, इसकी वैल्यू क्या है. एवरी गुड डीड ऑफ आवर लाइव्स विल टर्न इनटू अजर, विल टर्न इनटू अजर ऑन द डे ऑफ कयामत. मुस्लिम के अंदर रिवायत है इन हदीस, बीबी आयशा रजी अल्लाह अन्हा आस्क्ड द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूल अल्लाह, अब्दुल्ला बिन जुदान is a good person. Now Abdullah bin Judan was a kafir. He was a good person. He used to do good deeds, but he was not a Muslim. So she asked him that he does good deeds, he has morality, and he was good to his relatives. He was hospitable to his guests. He helped people when they were in trouble. Will these things profit him on the day of Qiyamah? Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, La. Nahi. No. That man never said, "Eh Allah, forgive me on the day of Qiyamah." उसने अल्लाह को अल्लाह माना ही नहीं.
कयामत के दिन जाके अल्लाह से क्या अजर मांगेगा जिसने अल्लाह को अल्लाह का हक ना दिया, अल्लाह को अल्लाह की रिकग्निशन नहीं दी। कयामत के दिन उसका कोई अजर नहीं है अल्लाह के पास। विद नो ईमान देयर इज नो अजर। अमल बिकम्स डिस्क्वालिफाइड, इट बिकम्स डस्ट। तराजू तोलने का, वी ऑलवेज रीड इन द आयत्स ऑफ द कुरान के मीजान उठाया जाएगा, तराजू उठाया जाएगा, एक में गुड डीड्स डाले जाएंगे, एक में बैड डीड्स डाले जाएंगे, इस तरह अकाउंटेबिलिटी होगी। तो एक बात समझ ले, जिसके पास ईमान नहीं है, द वेट स्केल विल नॉट बी ब्रॉट आउट फॉर देम। तराजू खड़ा ही नहीं किया जाएगा काफिर के लिए कयामत के दिन, क्योंकि उसका कोई हिसाब ही नहीं है, कोई हिसाब नहीं है, उसका कोई अमाल एक्सेप्टेबल ही नहीं है। जब एक्सेप्टेबल ही नहीं है, उसके पास है ही सिर्फ कुफर, है ही सिर्फ बैड डीड्स, ही इज गोइंग स्ट्रेट टू हेल। एंड अल आराफ और वजन कयामत के दिन किस में होगा? अल हक में। समझ में आया? अल हक का वजन, अल हक का वजन इज ईमान इन द एब्सोल्यूट ट्रूथ इन अल्लाह। इफ इट इज डन फॉर अल्लाह, फिर अ गुड डीड बिकम्स एन अमाल। इफ इट इज डन इन द वे ऑफ अल्लाह, फॉर अजर इन दी आखरा। हम अपनी नियतों को करेक्ट करें। हमारी नियत ये होनी चाहिए, मैं अल्लाह के लिए कर रही हूं, मैं अल्लाह के रास्ते में कर रही हूं, और अल्लाह मुझे तुझी से अजर चाहिए कयामत के दिन। मुझे दुनिया पे किसी का प्लीज एंड थैंक यू नहीं चाहिए। अल्लाह तू ही है, तुझसे मुझे अजर चाहिए। दिस इज दैट यू गेव द टेस्ट परफेक्टली। अब समझे, हम एग्जामिनेशन हॉल में है। द दुनिया इज एन एग्जामिनेशन हॉल। इफ यू रोट योर एग्जाम ऑन अ पीस ऑफ पेपर एंड देन यू डिडंट सबमिट इट, you didn't give it in to the teacher, you folded it and put it in your bag, are you going to get a test result? No, you never handed in your test, you never submitted your test, therefore you're going to fail. When they never did anything for Allah, then why should Allah give them ajr on the day of Qiyamah? हसरत और पछतावा सोचें आप कयामत के दिन काफिर का, the regret on this day of Qiyamah. And moment he will see his sins being forgiven by his tawbah, by his astaghfar. He will see Allah's rahmat. Every small neki, even if you remove the stone, रास्ते से अगर पत्थर हटाया है, उसका भी अजर लिखेगा अल्लाह, कयामत के दिन देगा। असल कदर ईमान की कयामत के दिन ही आएगी। वाकई कितनी बड़ी दौलत है ये ईमान, कितनी बड़ी। People will want to give all of the treasures of the dunya to buy iman that day, but they can't. They can't. Yarra देखेगा इंसान, कैसे देखेगा? In a way that he will be able to judge where he deserves to go. I keep repeating this on the day of Qiyamah when we stand up. हम इतने भोले नहीं होंगे। दुनिया पे तो हम बहुत भोले, पता नहीं ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, पता नहीं ये पढ़ना चाहिए कि I don't really know। बहुत मासूम, दीन के मामले में बहुत मासूम, दुनिया के मामले में बहुत तेज। हाईलाइटिंग और लेयर्स और कॉन्टोरिंग तक तो माशाल्लाह से हमें आती है, अपने अमाल नामे के बारे में हमें कुछ नहीं पता, बिल्कुल भोले बन जाते। नो, आई रियली डोंट नो इफ दैट्स दैट इंपॉर्टेंट, यू नो। तो ये कयामत के दिन कोई भोला नहीं होगा। अल्लाह इज सेइंग इन दीज आयत्स दैट यर्रा, वो कैसे देखेगा? वो ऐसे देखेगा कि जैसे ही वो अपना अमाल नामा देखेगा, when he sees the story of his life being played out, he is going to know whether he deserves, whether he's going to heaven, whether he's going to hell. खुद पता होगा कैसी जिंदगी गुजारी है। The lesson for me and you in this is to keep an eye out for the small gunas. अल्लाह बचाए हमें। अल्लाह से ही दुआ मांगेंगे ना, किससे दुआ मांगेंगे? अल्लाह ही बचा सकता है, उसकी जात है, उसकी शान है, उससे दुआ मांगे अल्लाह हमारे कबीरा सगीरा तमाम गुनाहों को माफ करे और अल्लाह हमें बचाए। हमसे ऐसे ऐसे गुनाह हो जाते हैं कि हमें पता भी नहीं है कि अल्लाह हमसे नाराज हो जाता है उन चीज़ों के ऊपर। Then don't think any small thing of a good deed. ये मिशकाला क्या बता रहा है कि जिंदगी के अंदर अगर एक तस्बीह का दाना भी पढ़ना है, छोड़ना मत। टाइम जा रहा है, जिंदगी जारी है। डोंट लीव दैट दाना ऑफ तस्बीह के। एक दाने से क्या मिलेगा? एक दाना पढ़ ले, मगर पढ़े जरूर। Don't leave any good deed, because what does the shaitan says? He says, लो वैसे तो तुम सुभान अल्लाह की तस्बीह पढ़ रही हो, जब तुम बाहर निकलती हो तुम्हारे सर पे दुपट्टा नहीं होता। Don't listen to the shaitan. Don't listen to the shaitan. Judgment is only for Allah. Accountability is only for Allah. वो खुद ले लेगा, बेहतरीन हिसाब ले लेगा अल्लाह। तुम क्या करो? मिशकाला भी नेकी का मत छोड़ना दुनिया के ऊपर। Try your level best, and yarra, he will absorb, he will know, he will be able to evaluate. Shaitan says don't do neki,
गुनाह करे जाओ। शैतान कहता है गुनाह करते चले जाओ। भाई अल्लाह तौबा कबूल कर ही लेता है ना, तो पहले वो बोल्ड बनाता है गुनाहों पे, किस चीज से? अल्लाह की रहमानियत से। कहता है अल्लाह इतना गफूर और रहीम है, चलो करो। जब मरने वाले होगे ना, बुढ़े हो जाओगे, तब पकड़ लेना हाथ में तस्बीह और कर लेना अल्लाह अल्लाह। पता नहीं तब मौका मिले ना मिले, पता नहीं तब हिदायत मिले ना मिले, पता नहीं तब वक्त मिले ना मिले, अगली सांस मिले ना मिले अल्लाह से तौबा करने की। तो तौबा तो आज करें, बिकॉज द कुरान टेल्स अस दैट द फुज्जार एंड द असीम दे आर आल्सो गोइंग विद द काफिर टू हेल। यू नो हु द फुज्जार एंड द असीम आर? दे आर सिनर्स जो हर रोज कहते हैं कि मैं कल तौबा कर लूंगा, मैं कल तौबा कर लूंगा, एंड देन व्हाट दे डू इज दे डाई इन दैट स्टेट। उनको तौबा नसीब नहीं होती। अल्लाह हमें सच्ची तौबा नसीब करे। शैतान कहता है गुनाह करते चले जाओ, अल्लाह तो तौबा कबूल कर लेगा, बट डोंट टेक अल्लाह's forgiveness for granted. Who can pressurize Allah? नाउजुबिल्ला, नाउजुबिल्ला। कयामत के दिन इतनी बोल्ड शेरो शायरी लिखते हैं, वो कहते हैं कि मैं भी गुनाह करता हूं तुझे गफ्फार समझ के। ये डायलॉग कयामत के दिन नहीं बोल सकेंगे अल्लाह के आगे, सारी बोलती बंद हो जाएगी, सारी स्मार्ट एलेकनेस जो इनकी ज़बानों से निकल रही है। वो कहते हैं क्यों तुम गुनाह नहीं करते? क्या तुम्हें अल्लाह के रहमान होने पे यकीन नहीं है? बेशक है, अल्लाह है रहमान, लेकिन अल्लाह की रहमानियत को नाउजुबिल्ला मैं अपना जहन्नम में जाने का एक्सक्यूज नहीं बना सकती। नाउजुबिल्ला अल्लाह की रहमानियत को गुनाह करने का एक्सक्यूज बना ले, दिस इज अ करप्टेड इंटेलिजेंस, and this is telling you that you fail to understand that this Rahman wants you to find your purpose of life here on the dunya. And मोमिन क्या होता है? I told you before, मोमिन का दिल रहमत की उम्मीद और खौफ। अगर अल्लाह ने माफ ना किया, अगर अल्लाह ने कयामत के दिन मेरे अमाल नामे की किताब के ऊपर उंगली रख के किसी जगह पूछ लिया, मेरी बंदी तुमने ये क्यों किया था, तो मैं क्या जवाब दूंगी अल्लाह को? दिस इज वेयर द मोमेंट्स हार्ट लिव्स, दिस इज द स्टेट इट स्टेज इन। अल्लाह वांट्स अस टू स्टे इन दिस स्टेट। आवर हार्ट शुड लिव बिटवीन द लव ऑफ अल्लाह, उम्मीद ऑफ हिज रहमत, एंड द फियर ऑफ अल्लाह। फिर इंशाल्लाह हम काम करने वाले बनेंगे इंशाल्लाह।